Sisters and brothers of America, now we will
welcome and felicitate to revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji with saplings. At first, Sulagna Maiti, student of Vidya Mandir, will felicitate to our revered Secretary Maharaj Ji with saplings. Give a big hand. Now, Isika, a student of Vidya Mandir, will felicitate our revered Principal Maharaj Ji with saplings. Give a big hand. आप लोग सब एक साथ मेरा साथ बोलिएगा। भारत माता की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। थैंक यू। नाउ Vedic chanting will be commenced by our Vidya Mandir students, Professor Navneet, Prince, Siddharth, Vaibhav, Anurag, Raghav, Aman, Kundan. Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. Sahana Bhavatu. Sahano Bhunaktu. Sahaviryam Karvavai. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shanno Mitra Samvaruna. Shanno Bhavatrayama. Shanna Indro Brihaspati. Shanno Vishnurukrama. Namo Brahmane. Namaste Vayu. Tvameva pratyaksham brahmasi. Tvameva pratyaksham brahma vadishyami. Hridam vadishyami. Satyam vadishyami. Tanmamavatu. Tadvaktayamavatu. Avatu mam. Avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Bhadram karneभिः शृणुयाम देवा. Bhadram pashimakshabhiyajatra. Sthirairangai sushtuvargam sastanuveh. Vasema devaityadayu. Swasti na Indro Vridhashrava. Swasti na Pusha Vishwaveda. Swasti nastaksho Arishthanemi. Swasti no Brihaspati dadatu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Tachayo Ravanimaye. Gatum Yajnaya. Gatum Yajnapataye. Devi Swastirastuna. Swastirmanusebhya. Urdhvam jigatu me sajam. Sanno astu dvipade. Sanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Yachandasa Vishavo Ishtarupa. Chando Vyodamrita Sambhavuva. Samendro Medhaya Spinotu. Namritasya Devadarano Bhuyasam. Shariram Me Vicharshanam.
जीवामि मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्त्वद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं माहेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परं नारायणः परो ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परं नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परं यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्यतः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशापतिकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्कावितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं मातः सन्ततगं शिलाभिस्थूलं मत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्नि विश्वाचे विश्वतो मुखः सोग्रभूमि भजन्तिष्ठनाहारं वज्रकवि तीयभूतं वदशायिरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा नियोगाव्यवस्थिता नीरतो यदमध्वस्वादुल्लेखे वासरा निवारशुकवत्तन्वी पीताभासत्तनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मस्य शिवस्य हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरं परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। Hello. A lot of thanks to our beloved students for performing. Now, opening song will be performed by our revered Brahmachari Vilas Maharaj Ji. I would like to request Brahmachari Vilas Maharaj Ji to come on the stage after preparing of our stage.
বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আয় রে আয় আহ্বানে তার আপনা বলিয়া আহ্বানে তার আপনা বলিয়া তোমারতি ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আয় রে আয় আহ্বানে তার আপনা বলিয়া তোমারতি ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে ভগবদ জাত দৈত্য দলিতে ভগবদ জাত দৈত্য দলিতে আপনা শক্তিতে কে যাবিয়ায় ভগবদ জাত দৈত্য দলিতে আপনা শক্তিতে কে যাবিয়ায় বীর সেনাপতি বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ ওই যে ডাকিছে আয় রে আয় আহ্বানে তার আপনা বলিয়া আহ্বানে তার আপনা বলিয়া তোমারতি ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি শারদানন্দ ভোগ কলার এনেছে জগতে শুধু হারার শারদানন্দ ভোগ কলার এনেছে জগতে শুধু হারার ভাতে আজিকে এই দাবানল ভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায় ভাতে আজিকে এই দাবানল প্রেম বাড়ি সেজে এনেছে হায় এসো দেব এসো করুণা নিদান লহো আজি মম তনু মন প্রাণ এসো দেব এসো করুণা নিদান লহো আজি মম তনু মন প্রাণ কৃপা করি কর আশিস দান কৃপা করি কর আশিস
सेनापति वीर सेनापति वीर सेनापति। Now, I would like to pray our revered Secretary Maharaj Ji, Swami Maheswarananda Ji Maharaj, to deliver his speech on this auspicious occasion. Maharaj Ji, please. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्राचार्य महाराज, सम्मानीय शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक और मेरे सामने बैठे हुए जनरेशन अल्फा जो बच्चे हैं, 2010 से साल बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको जनरेशन अल्फा कहते हैं। ये बच्चे जो हैं ये इंटरनेट से युग में पैदा हुए हैं। टेक्नोलॉजी की सबसे आधुनिक जो ज्ञान है उस समय ये बच्चे पैदा हुए हैं। इनके हाथ में ये टेक्नोलॉजी शुरू से आई है। अभी कुछ दिन पहले नेपाल में कुछ घटना घटी, हमने सुना जनरेशन जी, ऐसे ये जनरेशन अल्फा के बच्चे हैं। इनसे समाज की बहुत बड़ी उम्मीद है। तो बच्चे, आज हम इकट्ठा हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था उसकी वर्षगांठ के ऊपर 1893 में स्वामी जी ने आज की तारीख 11 सितंबर को शिकागो में जो भाषण दिया था। देखो, हम लोग सब चाहते हैं कि कुछ बड़ा होकर करके दिखाए। छोटे मोटे लोग चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो छोटे लोग हैं। कोई चाहता है वैज्ञानिक बने, लेकिन कोई चाहता है कि ये बन के हम समाज को कहीं नया दृष्टि दे, समाज को कुछ नया दिशा दे। वो लोग उससे बड़े होते हैं। और उससे भी बड़े लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम एक विश्व को दिशा दें। बड़े होने के लिए कितना समय लगता है? दुनिया में सबसे बड़ा होने के लिए कुछ सेकंड लगता है। ओलंपिक का 40 सेकंड की दौड़, 35 सेकंड की दौड़, उसमें विश्व में नाम होता है। 50 सेकंड में अगर कोई तैरता है 50 मीटर, विश्व नाम होता है। कुछ सेकंड। लेकिन विश्व को बदलने के लिए कितना समय लगता है? स्वामी विवेकानंद जी ने दिखा दिया अपने शिकागो की वक्तृता में। कितना मिनट का भाषण है? 6-7 मिनट, 8 मिनट का भाषण। उस भाषण के बाद जो भारत उस समय गुलामी था, कोई भी लोग उस भारत को जानते नहीं थे या भारत के संबंध में गलत धारणाएं थी। एक भाषण के बाद पूरे विश्व ने भारत की पहचान बदल दी। किस कारण? स्वामी विवेकानंद जी के 8-10 मिनट के भाषण में। भाषण तो बहुत लोग देते हैं, घंटों घंटों तक देते हैं। 5 मिनट के बाद हमको सुनने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भाषण जो है जो दुनिया को बदल सकता है। ऐसा कैसे हुआ? साधारण शब्द, कोई भी उसमें कठिन शब्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। भाषण देने के लिए बहुत कठिन शब्द, बहुत संस्कृत सुभाषित, बहुत कोटेशन, सब समय नहीं लगते हैं। जरूरत पड़ता है उपयोग होना है, लेकिन नहीं लगता है सब समय। भाषण देने की लगता है कि हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी उसके पीछे में। और वो कब शुरू होता है? आपके उम्र में। आप जब स्कूल में छात्र में हैं, तब से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद जी बनने का यात्रा शुरू हो गई उनकी।
उस उम्र में। अगर आप छोटे बच्चे, आपको लगता है कि दुनिया में हम कुछ करेंगे, मैंने पहले ही बताया डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत छोटी बात है। इस दुनिया को बदलने की अगर हिम्मत है और इच्छा है, सपना है, तो आपको सबको आज से, अभी से, जहां बैठे हैं वहीं से शुरुआत करना पड़ेगी। छोटा सा नरेंद्र के मन में बहुत सारे प्रश्न आते थे, उस प्रश्नों के उत्तर खोज में श्री रामकृष्ण का पहुंचता है, उनको उल्टे प्रश्न करता है, शंकाएं पूछता है, उनकी परीक्षा लेता है और उनके चरणों में बैठ के एक अलौकिक दर्शन पाता है ईश्वर का। वही नरेंद्र समझ में आता है उनका कि हर इंसान में भगवान है, इसकी पूजा करना चाहिए। वही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद जी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। उस समय की प्रथा के अनुसार सन्यासी लोग घूमते रहते थे, तीर्थ यात्रा करते थे भगवान के अलग अलग जगह, नहीं तो हिमालय में जाकर तपस्या करते थे। स्वामी विवेकानंद जी उस परंपरा के अनुसार हिमालय में भी गए और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन वो केवल सन्यासी नहीं थे, एक पढ़े लिखे युवक भी थे। उनको विज्ञान मालूम था, उनको साइंस मैथमेटिक्स मालूम था, उनको इतिहास मालूम था, इसका सबका ज्ञान होता उनको। उन्होंने अपने भारतवर्ष में घूम के क्या देखा? देखा कि एक तरफ हमारे समाज में गरीबी है, एक तरफ मतलब अधिकतर समाज में, और दूसरे बात कुछ छोटे धनवान कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, वो उनको रगड़ रहे हैं, उनको पीस रहे हैं, ये गरीबों को। स्वामी विवेकानंद जी ने इसके ऊपर जो विचार किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगने लगा कि इसका कोई उपाय खोजना पड़ेगा। अगर मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया है, हमारे शास्त्रों में कहा है, सब धर्म कहते हैं, कोई भी धर्म नहीं कहता है, सभी धर्म कहते हैं कि इंसान में भगवान आता है, तो इंसान की ऐसी हालत है, तो केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होगा, हमको इस इंसान की भी सेवा, हमको इस देश के लिए युवा चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। लेकिन उसके लिए इन लोगों को दवाई देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। कौन करेगा ये काम? जिस समय स्वामी विवेकानंद जी बात सोच रहे थे, उस समय वो परिव्राजक घूमने के लिए निकले थे सन्यासी होकर। उनके पास सिवा की 2 किताबें और कपड़े कुछ नहीं था, एक पैसा भी, पैसा संभालते नहीं थे। ये करना इतना आसान बात नहीं था कि उस समय भी देश की जनसंख्या बड़ी थी। तो उन्होंने संकल्प किया, एक व्यक्ति का संकल्प, कुछ भी नहीं है उनके पास, कि मैं इस भारत की जनता के लिए कुछ काम करूंगा। इस भारत की जनता जो है ये ईश्वर है, इसकी पूजा करूंगा। उसके लिए 2 चीज लगेगा, एक लगेगा धन और एक चाहिए आदमी को करने वाले। तो मैं पढ़े लिखे आदमी को निवेदन करूंगा, लेकिन बात आ गई पैसे की। तो पैसे कहां से जुटाएंगे? क्योंकि हमारे देश के जो लोग थे वो तो धनवान लोग गरीबों को लूटते ही थे, वो गरीबों को मदद ही नहीं करते थे, तो पैसा कौन देगा? उसी समय स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि अमेरिका में शिकागो में एक बड़ा विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। इस लोगों ने अनुरोध किया उनको, स्वामी जी आप वहां जाइए। स्वामी जी सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें करके इसके बारे में, ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने जाने का निर्णय लिया। उनके जाने के बहुत सारे कारणों में एक बड़ा कारण यह भी था कि मैं विदेश में जाऊंगा, वहां के लोगों को अपने देश की, धर्म की, संस्कृति की जानकारी दूंगा और उनसे मैं धन जुटाऊंगा और हमारे देश के लोगों की सेवा करूंगा। और इसीलिए ये संकल्प के साथ स्वामी विवेकानंद निकले। अब सोच लीजिए, स्वामी विवेकानंद की उम्र 27-28 साल की रही होगी, उनको इस देश में भी कोई पहचानता नहीं था उस समय। उस समय अमेरिका जाना बहुत कठिन बात थी, समुद्र जहाज से जाना पड़ता था, 2-3 महीना लगता था, अलग अलग देशों में जहाज में पेट्रोल भरने के लिए रुकना पड़ता था। तो स्वामी जी जापान और सब होके कनाडा से लेके अमेरिका पहुंचे। लेकिन पूरी यात्रा में भी उनका वही चिंतन है, वही विचार है। स्वामी जी के सहयात्री थे जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा कंपनी शुरू किया। स्वामी जी से उनकी मुलाकात हो गई। स्वामी जी ने उनको अनुरोध किया। देखिए स्वामी जी कैसा सोचते थे,
जिसको दुनिया में बड़ा बनना में इसलिए होता है कि उसी समय सोच रहे थे कि हमारा देश केवल पैसे से नहीं बड़ा होगा, यहाँ अच्छे वैज्ञानिक चाहिए। तो उन्होंने जमशेदजी टाटा को कहा कि आप ऐसा कोई अनुसंधान करने वाली संस्था खोलिए, हमारे देश में कुछ काम कीजिए जिससे वैज्ञानिक हमारे देश में पैदा होगा और हमारा देश उन्नति करेगा। हम कल देख रहे थे महाराज जी के साथ, कॉलेज की रैंकिंग आता है, उसमें भारत में टॉप में जो संस्था है बैंगलोर की, वो जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी, स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से शुरू की। तो स्वामी विवेकानंद जी यही कर रहे थे। फिर यात्रा में जो जो दिखते हैं उनके पत्र है, मैं बच्चों को सबको निवेदन करता हूँ, 9वीं 10वीं के बच्चे समय निकाल के अपने यहाँ आश्रम से आके मेरे से आइए और स्वामी विवेकानंद के पत्रों का किताब लीजिए और एक एक पत्र पढ़िए स्वामी जी का। स्वामी जी ने उस समय पत्रों में वर्णन किया है, जापान में क्या देखा और देशों में क्या देखा और वहां से हमको क्या सीखना चाहिए। उस समय जापान कितना बड़ा हुआ स्वामी जी ने सोचा था। तो ऐसे स्वामी जी शिकागो में गए, बहुत कठिन था उस समय जाना। उनके पास जब गए तब उन्होंने जो धन लाया था, पैसा लाया था, वहाँ का जो रहने का खर्चा था उससे तुलना में बहुत ही कम था। बहुत मुश्किल हो गया, लोगों के घर में रहना पड़ा, कहीं स्टेशन में रहना पड़ा। सभी मुश्किलों को पार करके वो शिकागो के महाधर्म सभा में पहुंचे और उन्होंने वो भाषण दिया जिससे वो 7-8 मिनट भाषण में वो केवल विश्व प्रसिद्ध नहीं हुए तो हमारे राष्ट्र को उन्होंने दुनिया के पटल में बहुत ऊंचा कर दिया दुनिया में। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म कहता है हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति गर्व होना चाहिए। मुझको भी मेरा धर्म का गर्व है, लेकिन मैं अपने धर्म को जितना सम्मान करता हूं उतना ही बाकी समाज के धर्म, बाकी व्यवस्था है उसको भी मैं उतना ही सम्मान करता हूं। ये बात कोई नहीं कह रहा था, हर व्यक्ति वहां आके कह रहा था मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन स्वामी जी ने पूरे उस जो भाषण चल रहे थे उसकी दिशा ही बदल दी। स्वामी जी ने कहा कि मेरा धर्म इतना श्रेष्ठ है। स्वामी जी ने कहा, संस्कृत श्लोक उद्धृत किया, कहा कि जैसी नदियां हैं वो बह बह के एक ही समुद्र में जाते हैं, वैसे सब धर्म एक ही जगह जाते हैं। तो फिर क्यों ऐसा होता है? स्वामी जी ने 2 मिनट में कहानी बताया। क्या कहानी बताया? लोग क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों आपस में करते हैं, क्यों लगता है लोगों को मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है? स्वामी जी ने कहानी बताया कि एक कुएं में एक मेंढक था, वो कुएं में ही रहता था। दूसरा मेंढक कहीं समुद्र में था, वो आके उसमें गिर गया, बाहर निकल नहीं रहे। तो दोनों की बातें होने लगी। ये कुएं के मेंढक ने समुद्र को मेंढक से बातें करते करते पूछा, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो बोला बहुत बड़ा है। कुएं का मेंढक बोला हो ही नहीं सकता है कुएं से बड़ा। बोले कुएं से बड़ा? बोला हाँ, नहीं हो सकता है। पहले तो उसने एक छलांग मार के दिखाई कुएं के मेंढक, बोले इतना बड़ा नहीं, पूरा कुएं के इस पार उस पार गया, लेकिन समुद्र का मेंढक कह रहे उससे बड़ा है। तो कुएं का मेंढक बहुत गुस्सा है, वो कह रहा है कि कभी हो ही नहीं सकता है समुद्र हमारे कुएं का बड़ा। ऐसी सोच क्यों आई? क्योंकि उसने कुएं के बाहर कभी जाने का मौका नहीं मिला था, उसने दुनिया देखी नहीं थी, इसलिए वो सोच रहा था कि मैं ही बड़ा हूं, मेरा ही कुआं बड़ा है। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये बात कि हम खुद को बड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं क्योंकि हम कुएं के मेंढक जैसे हैं। सबको आज अच्छा लगना चाहिए हमारा कटिहार अच्छा है, सबको लगना चाहिए हम कटिहार में रहते हैं। लेकिन कोई पटना का आदमी कहाँ बड़ा है, पटना बड़ा हो सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमने पटना देखा नहीं है। हो सकता है, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तब पता चले, और तब कटिहार का महत्व ज्यादा पता चलेगा। अरे पटना में बहुत चीजें, लेकिन कटिहार में ये भी चीजें, तो आपको गर्व लगेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी लोगों के सामने ये आदर्श दिया। आप लोगों को सबको अगर बड़ा बनना है तो आज से शुरुआत करना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र जैसा सबको प्रश्न पूछना है, आगे जाने के लिए प्रयास करना है, जानकारी लेना है, जानने की चेष्टा करना है। केवल कुछ कहता है कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, अपने से जानना है। जो बच्चे 14, 15, 16 साल के हुए उनके मन में हर्ष पैदा क्यूरियोसिटी रहना चाहिए, प्रश्न खोजने की लालसा होना चाहिए। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं आते हैं आप आगे नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोगों के सबके मन में प्रश्न आएंगे तो मैं लिख के देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हम भी सब बड़े बन सकते हैं, हम भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिसके कारण हम विश्व को एक नया दिशा दे सकते हैं, नया मोड़ दे सकते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद जी को जैसे आपको बनना है तो आप लोगों को सबको आज से शुरू करना है तैयारी। आप लोग से तैयारी करें, बहुत बड़े बन जाए। ऐसे भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। So we convey our heartfelt gratitude to our revered Secretary Maharaj Ji for his inspiring speech for our students. He has told Swamiji's ideology and encouraged our student by his inspiring speech. So a lot of thanks to our revered Secretary Maharaj Ji. Now I would like to request our revered Principal Maharaj Ji to deliver his speech on this auspicious occasion. Maharaj Ji, please. Om Namah Shivaya विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी तापहारिणे 11th September 1893। उपस्थित पूजनीय सेक्रेटरी महाराज को मेरा प्रणाम। सभी शिक्षकों, शिक्षिकाओं, अभिभावक सबको मेरा प्रणाम। मेरे बच्चों, आप सबको भी मेरा प्यार। 11 सितंबर पूरे इतिहास में ऐसा दिन है जो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत या भारत के बाहर भी। तो फेमस स्वामी जी ने स्पीच दिया था। स्वामी जी जब स्पीच देने गए थे, उनको पहली बार जब बुलाया गया तो उनमें साहस नहीं हुआ। वो बोले बाद में देंगे। उनके अंदर भी डर आया था, क्योंकि कभी उन्होंने इतनी बड़ी लगभग 7000 के आसपास विद्वत जनों के पास उन्होंने कभी कोई भाषण दिया हो, ऐसा कोई अभिज्ञता उनका नहीं था। बहुत छोटे 100-200 के आसपास उन्होंने अपने भारत भ्रमण में उन्होंने वक्तृता दिए होंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में या बांग्ला में। तो बार बार जब उनको बुलाया जा रहा है, उनको वो बोल रहे हैं बाद में नहीं। अंत में माँ सरस्वती को स्मरण कर, गुरुदेव को स्मरण कर उन्होंने अपना वक्तृता रखा, और वही वक्तृता आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वो भारत से हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, और उन्होंने जो कहा वो सभी धर्मों, सभी देशों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए, कि केवल सभी धर्मों पर सहिष्णुता नहीं बल्कि विश्वास, यही उनका मूल संदेश था। और यही हमारे वेदों का, उपनिषदों का मूल संदेश है। उन्होंने जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, वो एक कोलंबियन एक्सपोजिशन, उसका एक पार्ट था जो 5-6 या 7 दिन चला धर्म महासभा। उसमें स्वामी जी ने लगभग 6-7 के आसपास भाषण, वक्तृता उन्होंने दिए थे। उसमें से एक उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर निबंध लिखा था। उसको उन्होंने, काफ़ी बड़ा निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रखूंगा।
उन्हीं के शब्दों में यह उन्होंने 19 सितंबर 1893 को पाठ किया था उस धर्म महासभा में। और शुरुआत में ही वह कहते हैं कि विश्व के प्राचीन धर्मों में जो सबसे प्राचीन 3 धर्म हैं जो अभी विद्यमान हैं, एक हिंदू धर्म, दूसरा पारसी धर्म, तीसरा यहूदी धर्म। ये 3 प्राचीन धर्म हैं जो आज भी जीवित हैं, जिनका उद्भव 3000-4000 साल पहले से। इनके इतिहास को पढ़ेंगे पता चलेंगे विश्व के प्राचीनतम धर्म अभी भी जो पृथ्वी पर विद्यमान है, ये 3 धर्म हैं। हिंदू जाति, हिंदू धर्म के संबंध में वो कहते हैं ये वेदों से प्राप्त, हमारा जो मूल ग्रंथ है वो वेद है, 4 वेद हैं, ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों से लिया गया है और वेद को अनादि और अनंत कहते हैं। एक किताब कैसे अनादि और अनंत हो सकता है? पहले किताब नहीं थे, श्रुति, गुरु से शिष्य सुनकर करते थे, इसलिए बहुत ही शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। गुरु से सुनकर शिष्य सीखेंगे। आज जो हमारे बच्चे चैंटिंग स्तोत्र पाठ किए, उस हमारे सेक्रेटरी महाराज जी सिखाते हैं, ठीक उसी तरह वही श्रुति परंपरा से ही, ताकि प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। और एक चीज हमारे स्कूल में कमी है, हमारे 50% बच्चों में प्रोनाउंसिएशन नहीं है, न हिंदी न इंग्लिश। इसको करना होगा। पुस्तकें, स्वामी जी बोलते हैं वेदों का अर्थ कोई पुस्तक नहीं है, वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। और जिन्होंने इसको अनुभव किया था उनको ऋषि कहा जाता है, और उनमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, केवल पुरुष नहीं थे, उन ऋषियों में स्त्रियां भी थी जिन्होंने इन सत्य को अनुभव किया था। धर्म अनुभव की चीज है, रिलीजन इज रियलाइजेशन। बिना अनुभव के धर्म नहीं होता। और महान ऋषियों ने इसको अनुभव किया था और उन्होंने घोषणा किया। स्वामी जी के जीवन में भी अगर आप युगनायक विवेकानंद पढ़ेंगे, उनके जीवन में भी है, जब वो भारत भ्रमण करते हैं अमेरिका जाने के पहले, नदी के किनारे उनको सुनाई पड़ता है ध्वनि, वही प्राचीन वैदिक ध्वनि वेदों से जो आदिकाल से चली आ रही है। और वो ऐसे हैं जो संत महापुरुष जो सूक्ष्म शरीर में है, अभी भी भारत में अन्य देशों में विद्यमान है, भारत में है क्योंकि स्वामी जी ने खुद अनुभव किया। वो सुन पा रहे हैं वो वैदिक मंत्र को, प्राचीन काल में कैसे उसका उच्चारण होता था नदी के किनारे, क्योंकि ज्यादातर ऋषि मुनियों के आश्रम नदी के किनारे ही होते थे। घोषणा करते हैं ऋषि लोग, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानुतस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। यह श्वेतर उपनिषद का, वेदों का एक अंग है जिसे वेदांत कहते हैं। उसके अंदर में उपनिषद आते हैं, ये वेद से ही लिया गया है, श्वेतर उपनिषद से। अर्थ है, हे अमृत के पुत्रो, ऋषि लोग हम सबको ये घोषणा करते हैं, हे अमृत के पुत्रो। अमृत जो अजर है, अमर है, अनादि है और अनंत है। तो शरीर की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु शरीर का होता है, पर आत्मा अनादि और अनंत है। हे अमृत के पुत्रों सुनो, हे दिव्य धाम वासी देवगण तुम भी सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अज्ञान, अंधकार और माया के परे है।
केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो, दूसरा कोई पथ नहीं। इस संसार के दुख से बचने का एकमात्र उपाय है उस सत्य को जानना, उस परमेश्वर परमात्मा को जानना। यही ऋषियों की घोषणा है, यही वैदिक सत्य है। वेद कहते हैं इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में अमृत के पुत्रों, यह कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है। इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको मैं संबोधित करता हूं, आप इसकी आज्ञा मुझे दें। निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार कहते हैं। किसी किसी धर्म में है कि पापी, आपने पाप किया है और भगवान आपको उद्धार करने के लिए आए हैं। पर हिंदू धर्म कहता नहीं, सत्य से निम्नतर, सत्य से उच्चतर सत्य की ओर जाते हैं। निश्चय हिंदू आपको पापी कहना स्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के भागी हैं, पवित्र और पूर्ण आत्मा हैं। आप इस मर्त्य भूमि पर देवता, आप भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है, वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे, हे सिंहों, आए और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दे कि आप भेड़ हैं। आप आत्मा, अमर आत्मा, मुक्त, आनंदमय और नित्य हैं। आप जड़ नहीं, शरीर नहीं, जड़ तो आपका दास है, जड़ तो आपका दास है। पर हमें सत्य का ज्ञान नहीं, इसलिए हम अपने शरीर के गुलाम, अपने मन के गुलाम, अपने बुद्धि के गुलाम। हमारा मन जैसा चलाता है हम वैसा चलते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते। वो सत्य ढका हुआ है, जैसे बादल सूरज को ढक के रखा है, उसी तरह वह अज्ञान हमारे स्वरूप को, आत्मा परमात्मा को ढक के रखा है। वेद यह घोषित करते हैं कि सभी प्राकृतिक नियमों के मूल में, जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है। वह एक परमात्मा, वह एक शक्ति आप में, हम में, सब में, इन ईच एंड एवरीथिंग। He is inside everything, He is outside everything, He is interpenetrating everything, He is in the heat, He is in the cold. It is all He, it is all He. ज्ञान योग से स्वामी जी उपनिषदों के श्लोक को अपने कविता के छंद में प्रकट करते हैं। अगर आप ज्ञान योग पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। भयादस्याग्निः तप्तिः, भया तप्ति सूर्यः, भयाद् इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। यह कठोपनिषद से है, वेदों का ही एक श्लोक है। वह सर्वत्र है, अर्थात वह ईश्वर सर्वत्र है, ऐसा कहीं नहीं। शुद्ध निराकार सर्वशक्तिमान है, सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है, तू ही सभी शक्तियों का मूल है, हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है, तू मुझे इस जीवन में क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करें, कैसे उसको प्राप्त करें, कैसे उस परम परमेश्वर से प्रेम करें। प्रेम के द्वारा ऐहिक तथा पार्थिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी होगी। जो ईश्वर है, परमात्मा है, हमारा मूल स्रोत है, हमारी मूल शक्ति है, और उससे प्रेम करना है, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। हम क्यों प्रेम करेंगे? वो कोई हमसे अलग नहीं है, पर हम जानते नहीं। अज्ञान के चलते हमको लगता परमात्मा कहीं आकाश में, स्वर्ग में कहीं है। ऐसा नहीं है, हम में, आप में, सब में है। बट अनुभूति चाहिए, साधना चाहिए, प्रेम चाहिए, और सबसे अधिक प्रेम उसी से करना है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। Is the source of everything, is the power of everything.
श्री कृष्ण, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्णावतार मानते हैं, उन्होंने कहा, मनुष्य को इस संसार में पद्म पत्र की तरह रहना चाहिए। पद्म पत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। ये तभी संभव है जब ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तभी इस संसार के दुख कष्ट में हम रह सकते हैं। यह लोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमको अच्छी नौकरी मिले, पैसा मिले, आप कर सकते हैं, क्योंकि वे हमारे माता हैं, पिता हैं, सखा हैं, बंधु हैं, वही सब कुछ है। बाकी जगत में सब आने और जाने वाले हैं, केवल ईश्वर और ईश्वर ही सत्य हैं। पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। कठिन है, पर यही सबसे अच्छा है। और उसके निकट यही प्रार्थना करना उचित है, हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संतति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं, केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर निस्वार्थ प्रेम करूं। न धनम न जनम न च सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। एक दिन राजा युधिष्ठिर से उनकी साम्राज्ञी उनसे पूछती है, उनकी रानी उनको पूछती है, मनुष्यों में सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, महारानी देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है, मैं इससे प्रेम करता हूं। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूं, और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूं। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। वह अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। हम लोग शनिवार को श्याम नाम संकीर्तन करते हैं, उसमें 2 पंक्तियां आपको शायद याद होगा, अनुपम सुंदर मोहन श्याम, राधा माधव राधा श्याम। उनकी सुंदरता अनुपम है, उनकी सुंदरता के साथ किसी की सुंदरता की तुलना नहीं हो सकती। अखिल रसामृत सागर श्याम, समस्त अमृत के सागर हैं वो। संसार का सभी सुख कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ पल का है, पर ईश्वर सभी सुखों के सागर है। इसलिए उनसे प्रेम करना चाहिए। उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहां इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए उस परम प्रेम करना चाहता हूं। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। वेद कहते हैं आत्मा दिव्य स्वरूप है, अमर है, अनादि है। वह केवल पंचभूतों के बंधन में बंध गई है और उन बंधनों को टूटने पर अपने पूर्णत्व को प्राप्त करेगी। अज्ञान के बस हम इस शरीर से मन में, बुद्धि में आसक्त हैं और इसी को हम अपना समझ रखें, इसलिए दुख है, कष्ट है। यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और यह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतः एवं पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है, वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य ही इस जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। बाइबल में है, वो धन्य है जो सरल है, वो धन्य है जो पवित्र है, वही ईश्वर को पाएगा। ऋषि, हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देते हैं। मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पूर्णता की एकमात्र शर्त है।
अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं, बशर्ते हम में वह पवित्रता, शुद्धता होनी चाहिए, वह लगन होनी चाहिए, वह प्रेम होनी चाहिए। नाहम कर्म फलान्वेषी राजपुत्री चरामयुता ददामि देयमित्येव यजे यष्टम युत्कुत विद्यते हृदय ग्रंथे चित्यन्ति सर्व संशय शीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उनके जानने से सब बंधन कट जाते हैं, मिट जाते हैं, संसार के दुख से इंसान बच जाता है। इस प्रकार हिंदियों की सारी साधन प्रणाली का लक्ष्य सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना, और ईश्वर को इसी प्रकार प्राप्त करना, उसके दर्शन कर लेना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना हिंदुओं का धर्म है। हमारा स्वरूप वही है, उनके साथ एकत्व को प्राप्त करना, यही मूल शिक्षा है हिंदू धर्म की, वेदों का। तब वह असीम परमानंद का जीवन व्यतीत करता है, अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपभोग करता है। ऋषियों के संबंध में कहते हैं स्वामी जी, वो अनुरागी साधक जो मूर्ति के सामने प्रणत रहता था, साकार और निराकार, मंदिरों में पूजा करते हैं, घरों में पूजा करते हैं, पर केवल पूजा उद्देश्य नहीं है, पूजा लक्ष्य नहीं है, वो एक साधना है, पथ है। और कहां जाना है? सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित, और उन्होंने अनुभव किया, रियलाइज किया, और उसके बाद वो कहते हैं कि सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। यह कठोपनिषद वेदों का है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युतो भाति उतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमय है। उसके प्रकाश से सूर्य, चंद्र, तारे, समस्त सृष्टि प्रकाशित होती है। न चंद्रमा या तारागण ही व विद्युत प्रभा भी परमेश्वर को उद्भासित नहीं कर सकती, तब इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या, ये सभी उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं। सारी सृष्टि, हम और आप, उसकी शक्ति से प्रकाशित होते हैं। पर वह किसी की मूर्ति को गाली नहीं देता, न उसकी पूजा को पाप ही बताता है। वह तो उसे जीवन की एक आवश्यक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। ईश्वर ने अपने कृष्णावतार में हिंदुओं को उपदेश दिया, प्रत्येक धर्म में मैं मोती के समान, मोती की माला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूं। जहां भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारण शक्ति दिखाई दे तो जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। गीता में भगवान कहते, जहां भी विशेष जानो, पवित्रता जानो, मेरी शक्ति चाहे भारत हो या भारत के बाहर। और अंत में स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, वह जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का हुर्मस, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। वह ईश्वर हम सबको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। On behalf of our Vidyamandi students and all audience, I would like to extend my sincere gratitude to our revered Principal Maharaj Ji for his inspiring speech and encouraging speech. Now,